Hello students, today I am going to start chapter 24, Louis Pasteur. Children, Louis Pasteur was the name of scientist who invented anti-rabies vaccination. In ancient times, if a man happened to be bitten by a mad dog, he was taken to a blacksmith for treatment. Ancient means very old, and blacksmith means a person who made things from iron. So students, in ancient times, जब भी किसी पर्सन को मैड डॉग द्वारा काट लिया जाता था तो उस पर्सन को ट्रीटमेंट के लिए ब्लैक स्मिथ के पास ले जाया जाता था। उस पर्सन को ट्रीटमेंट के लिए ब्लैक स्मिथ के पास ले जाया जाता था। द ब्लैक स्मिथ वुड टेक एन आयरन रॉड, heat it on the burning coal till red hot and burn the patient's wound with it. In very rare cases, would the patient survive? Normally, this doesn't happen, and neither the patient nor the disease remains. Louis Pasteur had also seen blacksmith treating such patients in his village. He would tremble with fear every time he saw these. Children, the blacksmith would take an iron rod. जब किसी पर्सन को जिसे मैड डॉग ने काट लिया है उसे ट्रीटमेंट के लिए ब्लैक स्मिथ के पास ले जाया जाता था, तो ब्लैक स्मिथ क्या करते थे, आयरन रॉड लेते थे और उसे हीट करते थे बर्निंग कोल में टिल रेड हॉट, जब तक कि ये आयरन रॉड जो है वो रेड ना हो जाए, एंड बर्न द पेशेंट वुंड, और इस आयरन रॉड से पेशेंट के जो वुंड है मतलब जहाँ डॉग ने काट लिया उसे बर्न करते थे। अब बहुत ही कम केसेस ऐसे होते थे जिसमें पेशेंट सरवाइव कर सके, मतलब इस तरीके करने से पेशेंट को ट्रीट करने से बहुत कम ही ऐसे केसेस होते थे कि पेशेंट बच जाए। नॉर्मली क्या होता था, ना तो वो डिजीज़ ठीक होती थी और ना ही वो पेशेंट। लुइस पास्चर जो है उन्होंने भी अपने गांव में ब्लैक स्मिथ को इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हुए देखा मेंस लोगों को, पेशेंट्स को, तो वे काफ़ी डर गए क्योंकि ये चीज़ से वो बार बार देखते थे। ठीक है, what other ways were people bitten by a mad dog treated? Write about it. Find out from earlier people. Earlier people से पता कीजिए कि पहले यदि मैड डॉग द्वारा काट लिया जाता था तो क्या किया जाता था। The place where dog had bitten was burnt by using a hot iron rod
or some people used to put acid on the place where dog had bitten. Earlier, पहले क्या किया जाता था, जहाँ मेड डॉग ने काटा है वहाँ हॉट आयरन रॉड से उस जगह को, उस वुंड को बर्न किया जाता था। और कुछ प्लेस पे क्या किया जाता है, जो बिटन प्लेस है वहाँ एसिड डाला जाता है। लुइस चाइल्डहुड Louis Pasteur was born on 27th December 1822 in France. Louis Pasteur was born on 27th December 1822 in France. He obtained his primary education in his village school. He was sent to Paris by his father to obtain a degree in teacher's training. Louis could not adjust himself in Paris, for he would always miss his house, village and parents. So students, Louis Pasteur was born on 27th December 1822 in France. So Louis Pasteur belonging to France and he was born on 27th December 1822. He obtained his primary education in his village school. उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन जो है अपने गांव के ही स्कूल में लिया। He was sent to Paris by his father to obtain a degree in teachers training. टीचर्स ट्रेनिंग के करने के लिए, की डिग्री हासिल करने के लिए लुइस के फादर ने उन्हें पेरिस भेजा। बट लुइस कुड नॉट एडजस्ट हिमसेल्फ इन पेरिस। लुइस जो है वह अपने आप को पेरिस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे हमेशा अपने गांव को, अपने पेरेंट्स को और अपने घर को मिस करते थे। He fell sick and returned home. After recovery, he was sent to college in another city. और वो अपने घर, अपने विलेज और पेरेंट्स को याद करके वो दुखी होते थे, जिससे वो बीमार पड़ गए और वह घर वापस आ गए। आफ्टर रिकवरी क्या किया गया, उन्हें दूसरे कॉलेज में भेजा गया। देयर ही स्टडी साइंस। वहाँ उन्होंने क्या पढ़ा, स्टडीड साइंस। उन्होंने साइंस की पढ़ाई की। अर्लियर पीपल बिलीव्ड दैट decayed objects were in birth place of germs and bacteria. After repeated experiments, Louis proved that this line of thinking was wrong. He proved that decayed things have no strength to form bacteria germs. On the other hand, it is the bacterial germs present in the air that enter into flesh, fruits, vegetables, etc.
and decay them. Earlier, people believed that decayed objects were a birthplace of germs and bacteria. पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो खराब चीज़ें होती हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें होती, वो बर्थ प्लेस होते हैं जर्म्स और बैक्टीरिया के। बट लुईस के बार बार एक्सपेरिमेंट करने से ये थिंकिंग जो है पूरी तरह से गलत सिद्ध हुई। उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो खराब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, उसमें ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो बैक्टीरिया और जर्म्स को डेवलप कर सकें। बैक्टीरिया और जर्म्स जो हैं एक्चुअली एयर में होते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स में, फ्लैश में, वेजिटेबल्स में जाते हैं और उनको ख़राब करते हैं। सो एयर में ही बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं, जिससे कि फ्रेश ऑब्जेक्ट जो है वो ख़राब होता है। सो स्टूडेंट्स, जो एयर है उसी में बैक्टीरियल और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्रेश चीज़ों को ख़राब करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, read this lesson carefully. Next part of this lesson I will continue in my next video. Thank you.